Hello everyone, this is paper first of BA part first, Foundations of Political Science, and in this video we are going to study about the parliamentary form of government. So let's understand what does it mean, what are the features, merits and demerits of this form of government. So let's start. The relation between the executive and legislature is the only way to know whether a government is parliamentary or presidential. If real executive is responsible to the legislature or the parliament, the form of government is parliamentary. A parliamentary government is also called as responsible or cabinet form of government. So there are two types of executive. First one is nominal and second one is real. And here we are talking about the real executive. If real executive is responsible to the legislature or parliament, then this form of government is called as parliamentary form of government. Second one is the features. Let's understand, let's see the features one by one. First one is head of the state exercises nominal powers. In a parliamentary government, there is a head of the state. He may be the president, the governor general, the king, or the queen, according to the country. The main feature of parliamentary government is that constitutionally the head of the state enjoys many powers, but in practice he does not utilize these powers. The head of the state enjoys only nominal powers. And second one is clear and stable majority. In a parliamentary government, the administration is run by the majority party. The head of the state invites the leader of the majority party, becomes the prime minister, and he submits a list of his colleagues to the head of the state. The head of the state appoints them as ministers. In this way, a cabinet is formed. The ministers remain in office so long as they have the majority support in the lower house. I'm talking here about the lower house. This is the main and most important thing, that they should have the majority support in the lower house, as in India it is known as Lok Sabha. Third one is collective responsibility. Cabinet is collectively responsible to the parliament. It means that once a decision is taken by the cabinet, it becomes the responsibility of each minister to support it in and outside the parliament, despite the fact that he did not agree to it in the cabinet meeting. The ministers are collectively responsible to the parliament, even if that policy is related to the department of a single minister. If a motion of no confidence is passed by the parliament against one minister, it is considered to have been passed against the entire cabinet. The prime minister and the entire cabinet then tenders its resignation. So collective responsibility, it is important as for objective or short type questions also. Collective responsibility, that's mean when collectively, when a decision is being taken as a collective, then there will be collective responsibility. Collective decision, that's mean collective responsibility for that decision. Next one is individual responsibility. Whereas the ministers are collectively responsible to the parliament, they are also responsible individually for their respective departments. The members of the parliament can put questions to ministers and also criticize his department. Next one is leadership of the prime minister. Most important thing is the main characteristic of parliamentary government is the leadership of the prime minister over the cabinet. He being the leader of the majority party in the lower house is also called the leader of the house. The head of the state appoints ministers on his advice. He presides over the meetings of the cabinet. He also fixes the dates and prepares agenda for the meetings of the cabinet. He allocates the portfolios to the ministers and supervises and coordinates their functions. If a minister does not cooperate with him, and if he has any difference with him regarding any policy, the minister has to submit his resignation. So leadership of the prime minister regarding the cabinet, he appoints the ministers, he distributes them, he decides the portfolios for them, and he can say any of the ministers to resign anytime. Next one is political homogeneity. It means all the ministers act like a team in the cabinet and they do not disclose their differences in the public. Generally, the ministers are from one party, but in case of a coalition government, they are related to more than one party. In such a situation, ministers from all parties in coalition decide the policy line to which they have to work. The next one is secrecy.
The ministers are given severe punishment under the law of the land for disclosing any secrets to the enemy. Next one is right of the executive to dissolve the legislature, and sometimes there is a dialogue between the executive and the legislature. In such a situation, the chief executive or head of the state should have the right to dissolve the legislature so as to enable him to arrange fresh elections and seek a fresh mandate from the voters. Sorry. We have covered features. Now we will talk about the merits of the parliamentary form of government, and then we will discuss the demerits of this form of government. So first one is here comes the cooperation between parliament and cabinet is generally available in this system, and the prime minister has a control over the house and the cabinet, and he is the leader of the both. The prime minister acts as an important link between the two branches of the government, and in this way there is a cooperation between these two branches, executive and legislature. Second one is responsible government. Another characteristic of parliamentary government is that in this system the executive is responsible to the parliament for administration and policy. In this way, the parliament has a day-to-day control over the government for its administration and policies. Next one is the government does not become autocratic. In a parliamentary government, the executive cannot become autocratic because the government is always responsible to the parliament. Next one is this system is more educative. This system is more educative because it is based on party politics. There is a need for a strong organization in a party system, and a program is placed before the people through this system. During elections, the political parties make the people conscious of political problems and encourage them to understand these through speeches. Next one is adjustable according to the changing circumstances. Parliamentary government can be changed according to the circumstances, but presidential government cannot be changed so easily. Next one is head of the state gives impartial advice. In parliamentary government, the head of the state, president, king or governor general, whatever this system may be, is completely impartial because he is not related to any political party. All the parties pay due respect to the president. The prime minister is the leader of the majority party, but he needs impartial advice to run the administration, and the best advice can be given by the head of the state. Now let's discuss demerits of this system. So first one is there is always apprehension of the dictatorship of the cabinet. If the cabinet has sufficient majority support in the lower house of the parliament, there is apprehension of its acting arbitrarily in many matters. Second one is this system is against the theory of separation of powers. Many people are of the view that without the separation of powers, freedom cannot be protected, and this is not possible in a parliamentary systems because the executive is under the legislature. Next one is national interests are sacrificed sometimes at the altar of party interest. Every party strives to win the elections and to gain control over the government. So this can happen anytime. Next one is in parliamentary government, much time is wasted in discussion during war and emergency. In a parliamentary government, before taking a final decision in vital matters, they are debated in the cabinet first. In case of many and serious differences among the ministers, it becomes difficult for the prime minister to take decisions in such matter. In the parliament, the opposition parties also bitterly criticize the government. The prime minister and other ministers are to spend much time in pleasing the parliament. Thus, during war or emergency, when the prime minister is to take quick decisions, he has to face many difficulties. आज हम लोग बात कर रहे हैं संसदात्मक व्यवस्था के बारे में. संसदात्मक व्यवस्था, जैसा कि मेरे नाम से ही पता है कि संसदात्मक संसद तो जो इसके अंतर्गत व्यवस्थापिका या जो संसद होती है, इट मीन्स कि गवर्नमेंट के जो दो ऑर्गन्स हैं, एग्जीक्यूटिव और कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, अगर उनके आपस के संबंधों को देखें तो इसके अंतर्गत जो संसद या व्यवस्थापिका होती है ये एक प्रोमिनेंट रोल यहाँ पर अदा करती है. तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि जो संसदात्मक व्यवस्था कहते किसे हैं. व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के आपसी संबंधों के आधार पर सरकार के दो प्रकार निर्धारित किए गए हैं. एक होती है संसदात्मक, दूसरी होती है अध्यक्षात्मक.
संसदात्मक व्यवस्था, जिसे हम लोग उत्तरदायी शासन व्यवस्था या मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था भी कहते हैं। इसके अंतर्गत क्योंकि दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, नाममात्र और वास्तविक, और जो कार्यपालिका होती है वह व्यवस्थापिका के प्रति अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है। इसे हम लोग संस्थात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं, जिसके अंतर्गत वास्तविक कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है, और इस प्रकार से जो व्यवस्थापिका होती है ये कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। इसके बाद में इसकी आ जाती है विशेषताएं। तो पहला आ जाता है कि हेड ऑफ द स्टेट एक्सरसाइजेज नॉमिनल पावर्स, कि इसके अंतर्गत जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, राज्य का प्रधान, वो केवल नॉमिनल पावर्स रखेगा। नॉमिनल पावर्स दैट मीन्स नाममात्र की शक्तियां वो रखता है। नाममात्र की शक्तियां या मतलब जो संविधान है वो सारी शक्तियां राज्य के जो प्रधान है उसे प्रदान करता है, लेकिन वास्तव में उनका उपयोग नहीं करता है। वास्तव में सारी शासन की शक्तियों का प्रयोग वास्तविक कार्यपालिका, प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। तो पहली इसकी विशेषता आ जाती है कि राज्य का प्रधान केवल नाम मात्र की शक्तियां रखता है। संविधान उसे सभी शक्तियां देता है, लेकिन वह वास्तव में उसका उपयोग नहीं करता है। दूसरा आ जाता है क्लियर और स्टेबल मेजोरिटी, स्पष्ट और स्थिर बहुमत। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, संस्थात्मक शासन व्यवस्था में जो प्रशासन है वह बहुमत दल के द्वारा चलाया जाता है। इसके अंतर्गत जो राज्य का प्रधान होता है, जैसे हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति हैं, वे बहुमत दल के नेता को, जो भी बहुमत दल ने अपना प्राइम मिनिस्टर के तौर पे कैंडिडेट चुना है, उसे अपना इनवाइट करते हैं इस चीज़ के लिए। और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपने जो सहयोगी मंत्री हैं उनकी एक लिस्ट उनको देते हैं राष्ट्रपति को, और वो उन्हें अपने पदों पर नियुक्त कर देते हैं, मंत्री पदों पर नियुक्त कर देते हैं। और प्रधानमंत्री, उनकी मंत्रिपरिषद तब तक अपने पद पर बनी रहती है जब तक कि उन्हें व्यवस्थापिका की निम्न सदन का विश्वास प्राप्त हो। निम्न सदन का विश्वास का मतलब है, यदि हम लोग इंडिया की, भारत की हम लोग बात करते हैं, तो इसका अर्थ है कि उसे लोकसभा में विश्वास या बहुमत प्राप्त होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पास में ये कॉन्सेप्ट है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ होता है कि जब कभी प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की बैठक होती है, उसके अंतर्गत जो निर्णय लिए जाते हैं, मीटिंग के टाइम पर आप उस निर्णय का किसी भी तरीके से विरोध कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन एक बार यदि उस मीटिंग में निर्णय ले लिया गया है तो अब उस सामूहिक निर्णय के लिए सभी लोग सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। किसी भी एक मंत्री को हम लोग उस निर्णय के लिए उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि निर्णय सामूहिक है, इसलिए जिम्मेदारी भी सामूहिक। सामूहिक निर्णय के लिए सामूहिक उत्तरदायित्व। इसीलिए इसके अंतर्गत यदि एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास किया जाता है तो वह सभी मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव माना जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। हम लोगों ने ऊपर बात की है सामूहिक उत्तरदायित्व की, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का मतलब है, जब आपके पास में कोई पोर्टफोलियो है, आपके पास में कोई विभाग है, आप उसके अंतर्गत काम कर रहे हैं, तो उस विभाग के अध्यक्ष होने के नाते उस विभाग की समस्त जिम्मेदारियां इंडिविजुअली आपकी रहेंगी, पूरे मंत्रिपरिषद की नहीं रहेंगी। नेक्स्ट आ जाता है लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी विशेषता है संस्थात्मक शासन व्यवस्था की, कि इसके अंतर्गत जो प्रधानमंत्री होते हैं उनका नेतृत्व यहाँ पर से होता है। वही अपने सहयोगियों का, मंत्रियों का चुनाव करते हैं, उनकी मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है उनकी अध्यक्षता करते हैं, अपने मंत्रियों को विभागों का वितरण करते हैं, पोर्टफोलियोज जो होते हैं उनको देते हैं, और उनके ऊपर कंट्रोल रखते हैं, उनको मार्गनिर्देशन उनका करते हैं, और जब एनी टाइम वो किसी भी मिनिस्टर को अपने पद से हटा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पॉलिटिकल होमोजीनियटी, मतलब राजनीतिक सजातीयता। राजनीतिक सजातीयता का मतलब होता है कि जो मंत्री होते हैं, यदि बहुमत दल की सरकार, एक दल की सरकार है, तो मतलब वो जो जितने मंत्री होंगे वो एक टीम के रूप में कैबिनेट में काम करेंगे, एक दल के होंगे। लेकिन कभी कभी जैसे गठबंधन सरकारें मिलती हैं, तो जो जितनी गठबंधन में सरकार दल हैं वो सब मिलकर अपना काम करते हैं, और जब ये जो गठबंधन सरकार होती है तो वो एक पॉलिसी लाइन के अंतर्गत काम करते हैं। वो एक पहले ही अपना एक
डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें किस पॉलिसी लाइन के अंतर्गत काम करना है। तो इस तरीके से राजनीतिक सजातीयता होती है। तो राजनीतिक सजातीयता मतलब जो दल होते हैं वो मिलकर अपना काम करते हैं। लाइक ऑल मिनिस्टर्स एक्ट लाइक अ टीम इन द कैबिनेट एंड दे डू नॉट डिस्क्लोज देयर डिफरेंसेस इन द पब्लिक। नेक्स्ट आ जाती है सीक्रेसी आ जाती है। सीक्रेसी मतलब गोपनीयता। तो सीक्रेसी का मतलब होता है कि जो निर्णय लिए गए हैं उनको आप बिफोर टाइम पीरियड आप किसी को भी उसे ओपन नहीं करेंगे, आप उसे बिल्कुल आप सीक्रेट रखेंगे। और सीक्रेसी को यदि आप वायलेट करते हैं, आप उसका उल्लंघन करते हैं, तो आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। नेक्स्ट और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट फीचर आ जाता है राइट ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू डिसॉल्व द लेजिस्लेचर। तो संस्थात्मक व्यवस्था में कभी ऐसा हो सकता है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच में डेडलॉक आ जाता है, गतिरोध आ जाता है। ऐसी स्थिति में जो चीफ एग्जीक्यूटिव और द हेड ऑफ द स्टेट है शुड हैव द राइट टू डिसॉल्व द लेजिस्लेचर एंड यदि उसे डिसॉल्व कर दिया जाता है, व्यवस्थापिका को भंग कर दिया जाता है, ऐसी स्थिति में फ्रेश इलेक्शंस कराए जाते हैं। इसके बाद में हम लोग फटाफट से देख लेते हैं मेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। पहला आ जाता है कि इसके अंतर्गत पार्लियामेंट और जो कैबिनेट है, संसद और जो मंत्रिमंडल है, इनके बीच में जनरली एक सहयोग हमें देखने को मिलता है। इसका कारण मुख्यतः यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री होते हैं उनका जो सदन होता है और कैबिनेट दोनों के ही वो लीडर होते हैं, अपने मंत्रिमंडल के भी लीडर होते हैं। तो एक तरीके से वो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका है जो दोनों के बीच में कड़ी का जोड़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसके अंतर्गत उत्तरदायी सरकार होती है। उत्तरदायी सरकार होती है जो प्रधानमंत्री की मंत्री परिषद होती है, अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार से व्यवस्थापिका है वो सरकार के ऊपर डे टू डे अपना नियंत्रण बनाए रखती है। तीसरा इसके अंतर्गत ये है कि क्योंकि संसद इसके अंतर्गत व्यवस्थापिका इसके अंतर्गत कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, इसलिए जो सरकार है वो कभी भी निरंकुश नहीं हो पाती है। नेक्स्ट आ जाता है काफ़ी ज़्यादा शिक्षा पर सिस्टम है, क्योंकि इसके अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज है ड्यूरिंग चुनावों के दौरान है, और एक जनरली भी जो लोगों को दिन प्रतिदिन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, राजनीतिक समस्याओं के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट आ जाता है कि जो संस्थात्मक शासन व्यवस्था, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसे हम लोग बदलती हुई परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें बदलाव कर सकते हैं, जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में संभव नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है कि जो राज्य का प्रधान होता है, क्योंकि वह किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं होता है, इसलिए वह बिल्कुल निष्पक्ष रूप से अपनी सलाह सभी को देते हैं, सभी उनके पास में टाइम टू टाइम जाकर उनकी सलाह ले सकते हैं। इसके बाद में इसके डीमेरिट्स आ जाते हैं, दोष आ जाते हैं। तो पहला आ जाता है कि इसके अंतर्गत हर वक्त जो मंत्रिमंडल है उसकी तानाशाही का डर लगा रहता है। मंत्रिमंडल की तानाशाही का डर इसलिए रहता है क्योंकि यदि मंत्रिमंडल के पास में बहुमत दल का सपोर्ट है, बहुमत की अगर उसे सपोर्ट है, तो जो पार्लियामेंट है उसका उसके ऊपर नियंत्रण काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। दूसरा आ जाता है कि ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विपरीत है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मतलब कि जो शक्तियाँ हैं वे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका इनमें बिल्कुल विभाजित होनी चाहिए, और ये एक दूसरे के मामलों में ना तो हस्तक्षेप करें ना ही एक दूसरे को कंट्रोल करें। लेकिन क्योंकि इसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, इसलिए जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है इसके विरुद्ध है। नेक्स्ट आ जाता है इसके अंतर्गत कभी कभी ऐसा होता है कि जो राजनीतिक दल होता है, तो वे दलीय हितों को, जो राष्ट्रीय हित है उनके ऊपर प्रधानता देते हैं। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा इसका एक ड्रॉबैक है। नेक्स्ट आ जाता है कि जब इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, एक संकट काल होता है, चाहे वो वॉर हो या अदर टाइप की युद्ध हो या अन्य तरीके की जो भी इमरजेंसी होती है, उस टाइम में यहाँ पे डिस्कशन में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लिया जाता है, जबकि उस वक्त क्विक आपके डिसीजंस की और तुरंत कार्य करने की हमें ज़रूरत होती है। लेकिन क्योंकि इसमें पहले तो कैबिनेट के अंतर्गत डिबेट करो, देन पार्लियामेंट के पास में ये सब जो चीज़ें होती हैं, संसद में डिबेट करना, तो इसकी वजह से उस टाइम पर हमें काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है जबकि हम फास्ट डिसीजन नहीं ले सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।